Hello everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, today we are going to start new lesson which is lesson number 13, sound. Okay. So student, in this lesson we learn about sound. Okay. How sound are produced and how sound are transmitted from one place to another place. Okay. So let's see first topic which is sound produced by a vibrating body. Okay, so student will learn that about sound produced by vibrating body. Okay, the next topic is that sound produced by humans. Okay, so how humans produce sounds. So let's see first topic which is that sound produced by vibrating sound. How do you come to know that a period is over in your school? You come to know easily that someone is at your door when he knocks, or you hear the sound of the doorbell. Most of the time, you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep. So student, स्कूल में आपको कैसे पता चल जाता है कि पीरियड ख़त्म हो गया या फिर कोई डोर बेल बजा रहा है, नॉक कर रहा है, तो आपको कैसे पता लग जाता है? सो यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक. In this game a person is blindfolded and has to catch the remaining players. So जब हम हाइड एंड सीक जो गेम है वो जब हम प्ले करते तो हम कैसे हमारे आँख पे तो क्या रहता है, बंधा हुआ रहता पट्टी, तो हम कैसे कैच कर लेते हैं बाकी प्लेयर्स को? हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज़ कोल्डेस्ट टू हर? सो स्टूडेंट, कैसे पता चल जाता है ब्लाइंड उन लोगों को, क्योंकि आँख पे पट्टी बंद, कैसे गेस कर लेते हैं? So sound plays an important role in our lives. It helps us to communicate with one another. So student, जो sound है बहुत important role play करता है हमारी life में. It helps us to communicate with one another. We hear a variety of sounds in our surroundings. So student, हम एक दूसरे से sound के थ्रू ही बात करते हैं, है ना, और हम अपने साउंड जो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के साउंड सुनते हैं. यस, मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड you hear in your surrounding. In the music room of your school, you hear the sound produced by the musical instrument like flute, tabla, harmonium, etc. Yes, how is sound produced? How does it travel from one place to another? How do we hear sound? Why are some sounds? Such question in this chapter. We shall discuss such question in this chapter. तो ये सब questions के बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे. Okay, so students, see, this is the musical instrument: harmonium, sitar, flute, tabla. Yes. Now touch the school bell when it not in use. What do you feel? Again touch it when producing sound. Can you feel it vibrating? So student, अगर हम जो बेल है आपके स्कूल में उसको आप जब वो साइलेंट रहेगी तो उसको टच करके देखेंगे तो कुछ फील होगा क्या? नो. बट जब वो साउंड करती है, मतलब जब वो साउंड प्रोड्यूस करती है, बेल बजती है, तो क्या होता है, वो वाइब्रेटिंग होती है. तो यस, वाइब्रेट होती है. सो स्टूडेंट, हियर इज़ वन एक्टिविटी. यहाँ पे एक्टिविटी है, टेक अ मेटल प्लेट, हैंग इट a convenient place in such a way that it does not touch any wall. Now strike it with a stick. Do you hear a sound? Touch the plate or pen gently with your finger. Do you feel the vibration? So student, हमें क्या करना है, एक मेटल प्लेट लेना है और उसको हैंग करके रखना है और उसे क्या करना है, उस पर हमें कुछ हैंग करना है. ठीक है, उस पर कुछ मारना है हमें, तो क्या होगा, जब वो साउंड प्रोड्यूस करे तो क्या होती है, वो वाइब्रेट होती है. यस, अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विथ योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिकिंग. तो आफ्टर जब हम उसको स्ट्रिक करेंगे तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको हाथ में पकड़ना है. तो क्या होगा, डू यू स्टिल हियर साउंड? टच द प्लेट आफ्टर यू स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड. कैन यू फील वाइब्रेशन नाउ? सो साउंड होने के बाद में क्या आपको वाइब्रेशंस आएगी? Activity 13.2. Take a rubber band, put it around the longer slide pencil box, insert two pencils between the box and stretch the rubber. Now plug the rubber band somewhere in the middle. Do you hear any sound? Does the band vibrate? So student, आप लोगों को इस प्रकार यहाँ पे एक दिया हुआ है, दो पेंसिल लेना है, उसके बीच में रबर बैंड करना है. तो हम क्या करेंगे, अगर उसको टच करेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, वाइब्रेशंस होंगे. एज यू लर्न इन क्लास 7th,
to the fro and back and forth motion of an object is called vibration. Yes, fro and back movement जो रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, vibration. When the tightly stretched band is plucked, it vibrates and produce sound. When it stop vibrating, it does not produce any sound. तो क्या होगा, जब वो स्टॉप हो जाएगी वाइब्रेट, तो वहाँ से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. उसके बाद में और एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ मेटल डिस्क. वही करना है आप लोगों को. देखो स्पून से क्या करना है, उसको वाइब्रेट करना है, तो क्या होगी, वाइब्रेशन होगी और साउंड. वाइब्रेटिंग डिस्क जो रहती है वो वेव प्रोड्यूस करेगी. वी सी दैट द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड. इन सम केस द वाइब्रेशन आर इजीली visible to us, but in most cases their amplitude is so small that we cannot see them, however we can feel them. तो यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन जो वेव प्रोड्यूस होगी, हम थाली के ऊपर अगर स्पून से बजाते हैं तो क्या होती है, कुछ वाइब्रेशंस वेव्स तैयार होती है. ओके, देन एक्टिविटी यहाँ पे और एक एक्टिविटी है. देखो हम क्या बना रहे हैं, एक तारा. आप लोगों ने देखो जो एक तारा, देखो ये एक इंस्ट्रूमेंट है एक तारा जो साउंड करता है ना. क्या करना है, कैसे बनाते हैं, कोकोनट शेल लेना है. हेलो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तारा. यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ अर्थन पॉट. प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई वाइब्रेटिंग पार्ट्स. सो स्टूडेंट ये एक्टिविटी है. उसके बाद में देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स. जैसे कि देखो यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है और उसका वाइब्रेटिंग पार्ट्स का नाम दिया हुआ है. जैसे कि वीणा, तो वीणा में क्या करते हैं, उसकी स्ट्रिंग स्ट्रेच करना पड़ता है तो वो साउंड करता है. तबला में क्या करता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन. तो ऐसे ही आप लोगों को बाकी के जैसे सितार हो गया, तो सब यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको लिखना है. तो उसका जो कौन सा पार्ट जो वाइब्रेट होता है वो भी आपको कंप्लीट करना है. ओके, नाउ मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मांजीरा. ये देखो ये है मांजीरा, ठीक है, इसे कहते हैं मांजीरा, जिसको हम बजाते हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है. फ्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो मांजीरा, कैम्बेलेस एंड द ghatam and the nutes, mudpots and the cartel. These musical instruments are commonly used in many parts of our country. These instruments are simply beaten or struck. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है एक दूसरे के ऊपर उन्हें क्या करना पड़ता है, बीट करना पड़ता है, स्ट्रक करना पड़ता है, तो साउंड प्रोड्यूस करता है. कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप. यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ये देखिए क्या है, घातम, और ये जो है मांजीरा, जो आप लोगों ने देखे ही होंगे. यस, सो स्टूडेंट अभी एक्टिविटी देखो, यहाँ पे और एक एक्टिविटी दी है. आपको क्या करना है, 6 से 8 बाउल्स या टम्बलर्स लेना है. देखो एक ग्लास में वाटर्स लेना है. फिल देम वाटर अप टू डिफरेंट लेवल इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम एंड टू द अदर. नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्रीक द बाउल्स जेंटली. स्ट्राइक ऑल देम इन सक्सेशन. यू विल हियर प्लीजेंट साउंड. दिस इज योर जल तरंग. देखो ऐसे इस प्रकार आपको बाउल लेना है और सभी में देखो अलग अलग अमाउंट में वाटर लेना है. तो क्या होगा, अगर इनके ऊपर हम पेंसिल स्ट्राइक करते तो क्या होगा, यहाँ पे जल तरंग फॉर्म होती है, दिख रहा है. अगर हम उसको वाइब्रेट करेंगे तो वहाँ पे क्या होंगी, तरंग फॉर्म होती है, उसे कहते हैं जल तरंग. When we pluck the string of an instrument like sitar, the sound that we hear is not only that of the string, the whole instrument is forced to vibrate, and it is the sound of the vibration of the instrument that we hear. Similarly, when we strike the membrane of an mridangam, and the sound that we hear is not only that of the membrane but of the whole body of the instrument. So student, हम जैसे ही इंस्ट्रूमेंट में अगर स्ट्रिंग करते हैं, सितार में, साउंड में, तो उनकी होल बॉडी वाइब्रेट होती है और क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है. उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस. अभी साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ह्यूमंस में. स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग और सॉन्ग और बज लाइक अ बी. पुट योर हैंड और योर थ्रस्ट एज शोन इन फिगर. यू फील एनी वाइब्रेशंस. जब हम ज़ोर से चिल्लाते हैं और आवाज़ गाना गाते हैं तो हमारे जो थ्रॉट के ऊपर अगर हम हाथ रखते हैं तो क्या होते हैं, वाइब्रेशंस फील होते हैं. यस, इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और द लर्निक्स. इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस बाय वॉइस बॉक्स और द लर्निक्स. तो ह्यूमंस में क्या होता है, हमारे ये लर्निक्स में एक साउंड बॉक्स रहता है हमारे थ्रॉस्ट में. पुट योर फिंगर ऑन द थ्रॉट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प that seems to move when you swallow. This part of the body is known the voice box. It is the upper end of the wide pipe and two vocal cords are stretched across the voice box.
for lungs in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. So student देखो वॉइस बॉक्स जो है हमारे वुमेंस में इस प्रकार रहता है. यस ये देखो ये थ्रॉस्ट है हमारा, तो यहाँ पे वॉइस बॉक्स रहता है. ओके. When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sounds. Muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different. So student हमारे जो लंग्स में फोर्स रहती है एयर, तो क्या होती है वोकल कार्ड जो रहती है वाइब्रेट होती है और क्या करती है साउंड प्रोड्यूस करती है. Different from that when they are loose and thick. Let us see how the vocal cord functions. So student अभी हम vocal cords कैसे होती है तो उसके बारे में पढ़ते थे. स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, ये देखो एक्टिविटी दी हुई है. सो स्टूडेंट अभी हम जो रिमेनिंग पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ओके. सो टिल देन बाय एवरीवन.